अब 51 से लेके 60 तक, 51 से लेके 60 तक क्वेश्चन सॉल्व करो। अभी आपने कुछ घर में किए हैं या नहीं किए हैं? नहीं किए ना? चलो ठीक है, आप 51 से 60 तक सॉल्व करो, हम 5-10 मिनट वेट करेंगे। लेट अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो ज्वाइन, ओके? सो आई विल ब्रिंग माय लैपटॉप, आप अपना काम चालू करो 51 से लेके 60 तक। हो गए क्वेश्चन तो बोल देना, हाँ? भले 5 भी होने दो, हम लोग स्टार्ट करेंगे। 5 हो गए तो भी बोलो। Done, ma'am. फिनिश्ड? फिनिश्ड, ओके। सो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51। बाकी लोगों का हो गया क्या? Amit, I think you have finished, isn't it? No. स्टार्ट करेंगे। Which of the following is not correct regarding plasmids? You know, last time we have studied what are plasmids. Plasmids means they are circular. It is a circular DNA, of course, but it is extra chromosomal DNA present in bacteria. And we have studied last time the functions also. One is R factor, responsible for developing resistance. Second one is F factor, that is developing fertility, that means sexual reproduction, which is absent actually in bacteria, but because of plasmids it can happen. And thirdly, episome. Episome means small portion of the plasmid will get permanently attached to the genetic DNA, and that is called as episome. These are the functions of plasmids. All these things we have studied last time, and they can replicate on its own. So now इसमें से कौन सा होगा कि जो not सिंगल स्ट्रैंडेड? हाँ, सिंगल स्ट्रैंडेड कहाँ लिखा है सिंगल स्ट्रैंड? कौन सा ऑप्शन? 51 वाला कर रहे हैं ना हम लोग क्वेश्चन, उसमें सिंगल Yes. स्टैंड किधर भी सिंगल स्टैंड नहीं है। आपके इसमें है सिंगल स्टैंड? देखो मेरे, No. they are small extra chromosomal circular form of DNA. They are naturally found in bacteria. They are replicons capable of autonomous replication. ये सब दिया है, बराबर ना? यस, मैंने 50 का देख लिया था गलती से।
अच्छा, तो इसका आंसर क्या होगा अभी? B. B option. B option. Second, next question, the function of selectable marker is? C option. C. Correct, very good. Selectable marker will eliminate the non-transformant. Non-transformant is the one which are not transformed from 1 minute, huh? Correct. Then the next question, the introduction of tDNA into plant involves tDNA आपको पता है कहाँ पे रहता है ये tDNA? हाँ, कहाँ पे है ये tDNA? आपको कहाँ पढ़ा है? You know, Agrobacterium Infection of tumefaciens. plant Yes, by sir. Yes, B Agrobacterium. हाँ, answer is second. B. B Yes, option. correct. लेकिन इसका थोड़ा explanation देती हूँ. Agrobacterium tumefaciens. It is a bacteria which is present in the soil, and it causes crown gall disease to dicot plant. Crown gall disease to dicot plants. So when it infects the plant, if this agrobacterium is having tDNA, and in this tDNA, the gene which is there, which T means responsible for causing tumor, crown gall disease, इसका मतलब है कि when this bacteria infects the plant, on the branches of the plant, swellings are developed, tumors are formed. So this tDNA is responsible for causing the tumor. तो उसमें से tDNA से साइंटिस्ट क्या करते हैं? The gene which is responsible for causing tumor, it is removed, and in that place the desired gene which we want to introduce into the plant वो add करते हैं, और बाद में it is again introduced into the agrobacterium, and this agrobacterium, when it infects the plant, naturally what will happen? The plant will get the disease, but there will be no tumor formation. On the other hand, whatever gene we want to introduce into the plant, it will be introduced. So your answer, infection of the plant by Agrobacterium tumefaciens, is correct. Do you know which are called as natural genetic engineers? दो बैक्टीरिया है, क्या है उनका नाम? मेरा क्वेश्चन है, which are two natural genetic engineers? ऑप्शन में नहीं देती हूँ, आपको आता है तो बोलो, नहीं तो बाद में कभी ये क्वेश्चन आ जाएगा तो हम लोग कर लेंगे. यस, एनी आइडिया? BAC. कौन सा? BAC. BAC is artificially prepared bacterial artificial chromosome. नाम में आर्टिफिशियल है. Yes. मैंने पूछा है which are natural genetic engineers. बोलू इसका आंसर? उसका आंसर है E. coli and Agrobacterium tumefaciens. Agrobacterium tumefaciens. दो, हाँ, E. coli and second one is Agrobacterium tumefaciens. याद रखो, हाँ, they are called as natural genetic engineers. ऐसा क्वेश्चन आता है कभी कभी, which of the following are natural genetic engineers? अलग अलग ऑप्शन होंगे, तो अपना आंसर होगा E. coli and Agrobacterium tumefaciens. Now next one, the technique of bombarding plant cells with high velocity microparticles of gold and tungsten coated with DNA is? ये आपको B option. आपको पता है ना? नहीं तो देखो, इसमें अपने जिनको पता नहीं है उनको मैं बोलती हूँ कि अपने को जो नोट्स भेज दिए हैं उसमें दिए हैं ये माइक्रो इंजेक्शन, बायोलिस्टिक मेथड, हीट शॉक मेथड, ये सब कुछ दिया है. वो आप पढ़ो एक बार तो आपको समझ में आएगा. Now next one, which of the following microparticles are coated with DNA so as to be bombarded into cell with gene gun during transformation? Gold and tungsten. B option. Gold or tungsten. Gold and tungsten, correct. Now solve 56 to 60. I will give you 5 minutes. Do that. 56 to 60.
और पीछे आंसर नहीं देखो, यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर मॉड्यूल यानी जो नोट्स भेजे हैं वो, नहीं तो आप सीबीएसई का टेक्स्ट बुक देखो, अपना टेक्स्ट बुक देखो। Done, ma'am. Done? Yes, we will wait. Yes, everyone has finished or no? Yes. तो चालू करें 56 वाला, चलो 56, मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अभी इमेजिन करो कि मुझे ना वो फोर्थ वाला समझा ही नहीं है, तो अभी मैं क्या करूं? तो इन दैट केस आई विल गो ऑन फाइंडिंग। तो अभी एगेरोज किस में है? एगेरोज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीवीड। Seaweeds. हाँ, सीवीड्स। तो फर्स्ट का बी वो किस में है? ऑप्शन सी और डी में है। तो मेरे ए और बी ऑप्शन तो आंसर नहीं है, ये मुझे पता चला। तो मैं अभी कॉन्सेंट्रेट करूंगी सी और डी। देन ओवरहैंगिंग स्टेजेस आर कॉल्ड एज स्टिकी एंड्स। Sticky ends. हाँ, स्टिकी एंड्स। वो आपको पता है कि व्हेन वी पुट एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम on the DNA, what happens? Endonuclease will cut the DNA, restriction endonuclease, it will cut the DNA at specific sequence of nitrogen bases. तो sticky ends form होते हैं। तो सेकंड का आंसर है ए। तो अभी सेकंड का आंसर ए में कहाँ है? दोनों में है, सी और डी। तो अपना आंसर श्योरली आइदर सी और डी होगा, लेकिन अभी अलग देखना पड़ेगा। तो देखो, थर्ड वन सेल बम्बार्डेड विथ टंगस्टन, ये तो जीन गन मेथड है। तो थर्ड का आंसर डी, वो किस में है? D. ऑप्शन तो Option. अपना आंसर हो गया ऑप्शन डी। तो ऐसे एक एक देखते जाने का और कर लेने का। तो एक हाथ कुछ नहीं समझा होगा ना, तो भी आंसर मिल जाएगा। दैट इज द ट्रिक। नाउ नेक्स्ट वन, 1 minute, next one, if we have to break open the cell to release DNA along with other macromolecules, which of the following enzyme is used to break bacterial cell wall? B option. Lysozyme. Lysozyme. कौन सा? Lysozyme. लाइसोजाइम, करेक्ट। अभी काइटिनेज कब ऐड करना पड़ेगा? कौन Fungi. सा ऑर्गेनिज्म होगा? Fungi cell wall. Fungi का cell wall. फंगल के लिए। और सेल्यूलर पेक्टिनेज? Plant cell. Cellulose Plant wall. cell. Plant. Correct. That means here what you have to remember, सेल वॉल किससे बनी है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो प्लांट में सेल्यूलोज और पेक्टिन, तो नेचुरली ए एंड डी। फंगस होगा तो काइटिन, तो काइटिनेज। वैसे ही बैक्टीरिया के लाइसोजाइम। Now 58 purified DNA can be precipitated after isolating from other macromolecule by addition of Chilled ethanol. yes, इथेनॉल डाले तो हो सकता है। ये इथिडियम ब्रोमाइड किस में आ गया? हम लोगों को पढ़ा है ना इथिडियम ब्रोमाइड। Gel electrophoresis. Yes. Yes, correct. Radiation. Correct. And Taq polymerase,
What is tag PCR, polymerase? polymerase chain reaction. हाँ, और वो टैग पॉलीमरेज ये क्या है? एंजाइम है. Yes. Yes. What is the speciality of that? टैग पॉलीमरेज की स्पेशलिटी आपको पता है? With temperature resistant. Yes, yes. In PCR technique, the temperature will rise maybe up to 90 degree also. And you know, enzymes are proteins, and proteins are temperature sensitive. So they will get destroyed. So this tag polymerase can resist high temperature. That is why we use tag polymerase in PCR technique. And from which bacteria it is obtained? Thermus Thermus aquaticus. Aqueous. Thermus Aquaticus. aquaticus. Correct. Now next question 59. Multiple copies of DNA are synthesized in vitro by using. Polymerase Polymerase chain reaction. reaction. What is the meaning of in vitro? In vitro and in vivo. These are the two words. In vitro and in vivo. VIVO. These are the two words. उसका मीनिंग क्या है? 11th स्टैंडर्ड में फर्स्ट चैप्टर में ये क्वेश्चन था. What is the difference between in vitro or explain the term in vitro and in vivo? चलो आपको नहीं आता है तो मैं सिर्फ बोलूंगी. अभी देखो मैंने पोलन ग्रेन्स लिए हैं स्लाइड पे मैंने पोलन ग्रेन्स लिए, उसके ऊपर शुगर सॉल्यूशन डाल दिया तो पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो जाएंगे. उसको मैं क्या बोलूं? इन विट्रो प्रोसेस और इन विवो प्रोसेस? In vitro. ओके, इन विट्रो. नहीं तो अभी देखो टेस्ट ट्यूब बेबी बनाते हैं तो उसमें मेल गैमेट that is sperm of human being, it is forced to fuse with female gamete that is egg in the test tube. ये प्रोसेस को मैं, ये टेक्निक को मैं क्या बोलूं? इन विट्रो या इन विवो? In vitro. इसका मतलब इन विट्रो का मतलब क्या है? External हो रहा है. External. Outside the body. यस करेक्ट. इसका मतलब है इन विट्रो का मतलब है when that process takes place outside the body of living organism, it is in vitro. And in vivo means inside the living body. Yeah? That means you have followed in vitro and in vivo. वैसे ही in situ conservation and ex situ conservation, ये भी दो वर्ड्स है environmental biology में. तो in situ conservation का मतलब क्या होगा? मीन्स ये याद रखे ना तो वो भी याद रख सकते हैं. इन सिटू कंजर्वेशन मीन्स क्या? Means conservation of animals from the same place. हाँ करेक्ट. When the plants and animals are taken care, they are conserved in their natural place, in their natural habitat, it is in situ conservation. Or ex situ conservation means we take care of plants and animals away from their natural habitat. It is ex situ conservation. तो ex situ conservation का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? Zoo. हाँ करेक्ट. जू एनिमल्स के लिए, प्लांट के लिए क्या होगा? हम लोगों ने किया है 11th स्टैंडर्ड में ये फर्स्ट चैप्टर में. शायद ये इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में भी है, मुझे याद नहीं है इसलिए. बोटैनिकल गार्डन्स. सिटू कंजर्वेशन. और इन सिटू कंजर्वेशन क्या होगा? In situ conservation, certain areas are declared as protected areas, that is sanctuary. Sacred groves. Sacred groves, sanctuaries, bird sanctuary रहती है, आपको पता है? That is, or sacred groves, that is in situ conservation. Okay. Now next question. The downstream process includes. Only separation and purification. D option. You know what is upstream process and downstream process? क्योंकि ये अपने बुक में नहीं है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेस, वो सीबीएसई में दिया है. यू नो दिस फर्मेंटेशन व्हेन इट टेक्स प्लेस. फर्मेंटेशन आपको पता है. फर्मेंटेशन मींस वी डू दिस प्रोसेस पर्पसली in order to obtain certain
end product, commercially important end product. We use certain microorganisms, then we take particular substrate, and then this process is brought about. फर्मेंटेशन से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं? आपने एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन चैप्टर किया होगा तो आपको पता है कि अल्कोहल, देन एंटीबायोटिक्स वी कैन प्रिपेयर लाइक दिस बाय fermentation process, and for that fermenters are used. I think in our notes also this fermenter diagram is given. Have you seen the diagram of fermenter in our notes? बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में ही देखा है. देखो, अब देखो ये क्वेश्चन छोड़ दो, वो देखो आपको मिलता है क्या? मैं भी देखती हूँ मेरे लैपटॉप में फर्मेंटर का डायग्राम, और पेज नंबर भी बोलो मुझे मिल गया तो. हाँ देखो, मुझे तो मिल गया. हाँ, पेज नंबर मुझे नहीं दिखाई देता है, आपको दिखाई देता है? सिंपल स्टर टैंक फर्मेंटर बायोरिएक्टर दिखाई दिया? स्टर टैंक फर्मेंटर बायोरिएक्टर. Yes. हाँ, तो ये जो है ना उसको फर्मेंटर बोलते हैं. ये स्टर टैंक फर्मेंटर है. और अपने बुक में जो डायग्राम दिया है ना एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में, वो आपने चैप्टर किया है एनहांसमेंट? No, ma'am. तो उसमें ना डायग्राम ट्यूबुलर टावर फर्मेंटर का है. फर्मेंटर यानी बायोरिएक्टर, ट्यूबुलर टावर बायोरिएक्टर. तो वो जो है ना ट्यूबुलर टावर फर्मेंटर, वो यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल. और ये जो है ना सिंपल स्टर्ड बायोरिएक्टर जो आप देख रहे हैं, सबको मिल गया है? नहीं है? सब लोगों Yes. को मिल गया. तो ये जो है ना इट इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग और प्रोडक्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स. आप लोग ये सीखोगे एनहांसमेंट चैप्टर में. तो ये स्टर टैंक फर्मेंटर उस एंटीबायोटिक के लिए यूज करते हैं. और ये जो है ना बीच में स्टरर है, बीच में जो है स्टरर. स्टरर मीन्स विथ द हेल्प ऑफ दैट वी कैन स्टर. मराठीमध्ये आपण त्याला रवी म्हणतो, मला हिंदीत माहिती नाही. लेकिन देखो आपकी मम्मी जब छाछ बनाती होगी तो शी विल डू इट लाइक दिस स्टरर से. याद है ना उसको? आप लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? मराठी में वी कॉल्ड इट एज रवी. रवी यानी वी टेक द कर्ड एंड वी stir the curd so that milk, छाछ, that is buttermilk is obtained. So this is the stirrer. आप बीच में देख सकते हैं. And this stirrer is rotating all the time. और ये जो टावर है, ये जो फर्मेंटर है, बायोरिएक्टर है, it is made up of stainless steel. और उसमें हम लोग न्यूट्रिएंट्स डालते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डालते हैं, एंड पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर कंडीशंस, pH is maintained. And the stirrer will rotate all the time. So microorganisms will get mixed with the nutrients, and then the process of fermentation will take place. So we sterilize the bioreactor. Then we maintain particular pH, particular temperature. We add culture medium. Culture medium means bacteria हो, कुछ भी हो जो हमको डालना है उसमें. We take pure stain of that. Then we take carbon source, some carbon source, and we put everything in that. This process is done before fermentation. It is called as upstream process. It is called as upstream process. और उसके बाद fermentation होने के बाद हम लोग ये सब जो इसमें डाला है वो सब रिमूव करते हैं. And then separation of the antibiotic is done. Purification is done. So whatever is done before fermentation, it is upstream process. And whatever is done after fermentation, it is called as a downstream process. पता चला अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम किसको बोलते हैं? Yes. और उसमें भी ना दो प्रोसेसेस है, बैच प्रोसेस, बैच प्रोसेस एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस. बैच प्रोसेस में क्या होता है? एक पर्टिकुलर अमाउंट का एंटीबायोटिक तैयार हो गया, समझो ये बायोरिएक्टर में, तो हम लोग बायोरिएक्टर पूरा एम्प्टी करते हैं और उसको फिर से स्टेरिलाइज करते हैं, फिर से सब प्रोसेस करते हैं आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड. That is batch process. Or maybe for months together, we don't sterilize the bioreactor. Once it starts, हम लोग रोज उसमें डालते जाते हैं जो कुछ फंगस बैक्टीरिया डालना है, न्यूट्रिएंट डालना है, and it goes on continuously for many months. That is continuous process. So batch process and continuous process, like that also
2 methods are there in that. So उसमें कुछ आपको क्वेश्चन आ गया तो याद रखो, बैच प्रोसेस एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस. क्लियर? सो अभी मैं फिर से वो क्वेश्चन तक जाती हूँ. आप लोगों ने सबने देखा है ये डायग्राम, और ट्यूबुलर टॉर फर्मेंटर का डायग्राम आप इसमें देखो, एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, उसमें प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, माइक्रोब्स इन द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग, इसके अंडर प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल है, उसमें देखो. अभी क्वेश्चन नंबर 60, हाँ 60 चालू था हमारा. हाँ, the downstream process includes only separation and purification. Correct. Now next one, 61 से 65 करो. Take 5 minutes and do that. (61 से 65). Done, ma'am. Done. Okay. 3 तो रिपीट ही एक क्वेश्चन है ना. Yes. चलो, तो 61. PCR proceeds in 3 distinct steps governed by temperature. Which of the following requires maximum temperature? Denaturation. Denaturation. Denaturation के लिए क्या टेम्परेचर लगता है? 90 to 90 90 to degrees 98 Celsius. degrees Celsius. Second step is, Na11. उसको क्या टेम्परेचर लगता है? 40 to 60 degrees Celsius. और लास्ट स्टेप? Renaturation. नहीं, लास्ट स्टेप Primer extension. Extension. उसको कितना लगता है टेम्परेचर? 70 to 75 75 degrees Celsius. मैक्सिमम डिनेचुरेशन. करेक्ट. तो पीसीआर टेक्निक किसने डेवलप किया है? साइंटिस्ट. याद नहीं होगा तो बुक में देखो क्या है, मुझे बोलो. और आई विल वेट. Carey Mullis. Yes, very good. Carey Mullis developed this technique. Correct. PCR का full form? Polymerized chain reaction. उसमें क्या करते हैं हम लोग? We make many copies of DNA in vitro or in vivo? In vitro. Correct. Next question, 62. Taq polymerase enzyme is obtained from? Thermus aquaticus. C option. Thermus aquaticus. Do you know Pseudomonas foetida?
नहीं पता होगा तो याद रखो, नहीं तो लिख के ले लो. Pseudomonas putida, it is used to remove oil spills. ऑयल स्पिल्स पता है ना, समझो कोई शिप, बड़ा शिप ऑयल लेके जा रहा है, नेविगेशन हो रहा है और उसमें लीकेज आ गया, तो आप लोग कभी कभी न्यूज पढ़ते होंगे कि ऑन द सी वाटर देयर इज अ लेयर ऑफ ऑयल and it will destroy the aquatic animals, so that oil spill should be removed. So how that oil spill is removed? This Pseudomonas putida, it will digest that oil. So Pseudomonas putida, it is a bacteria, you can say, which digests the oil. So it is used to remove oil spills from ocean. और ये thiobacillus क्या है? Is it a chemoautotrope or photoautotrope? Last year 11th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने किया है ना 5 किंगडम, उसमें ये नाम आया था थायोबैसिलस का. It is a chemoautotrope. That means it can prepare its own food material for which the energy is obtained from some chemical reaction. Okay. So now 63. Enzyme tag polymerase used in PCR technique is obtained from B option. Thermosequence. Okay. Salmonella typhimurium, ये नाम आपने कहाँ पे पढ़ा है? The first plasmid. When recombinant DNA technology was done first time, that time they have used the plasmid from Salmonella typhimurium. But who did that first time? Recombinant DNA technology. Stanley Cohen and Herbert Herbert Boyer. Boyer. Yes, very good. Cohen and Boyer has done this. And who suggested it first? उन्होंने किया, लेकिन सजेस्ट किसने किया था? नाम मालूम है आपको? Peter Loben. Yes, Peter Loben, he was a student and he suggested that, and Cohen and Boyer did it first time. ये Rhizobium phaseola, ये क्या है? पता है आपको? See, you have not studied biofertilizers, isn't it? Because you have not done the chapter enhancement. So enhancement in food production, उसमें biofertilizers है. Biofertilizer means, you know one thing, that on the roots of legume plant, you get nodules. ये तो पता है ना, root nodule आपको पता है ना? Yes. So Rhizobium bacteria, which is living in soil, it infects the cortex of legume plant. And the Rhizobium bacteria, what it will do? It will take the atmospheric free nitrogen, will convert it into nitrate, and will give it to the plant. And the plant will provide food and shelter to this bacteria. So symbiotic association is there. But this Rhizobium, different species are there, and they have a specific interaction. आपको पता है, species will tell you something special. So ये phaseola है. ये जो है ना, वो सिर्फ पेजियोलस प्लांट को ही इन्फेक्ट करता है, यानी कि बीन्स को, पी प्लांट को नहीं, बीन्स को. तो ये दैट इज अ बैक्टीरिया विच इज शोइंग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. एंड ये बैसिलस thuringiensis, ये क्या है? बैसिलस thuringiensis आपको पता है ना? Pest resistant plant में BT cotton में. हाँ, correct. Important plant from this Bacillus thuringiensis. One gene is introduced. Which is that gene? Cry gene. Cry gene. Cry gene. Why it is called as cry? रोता है क्या ये? Cry क्यों लिखा है? रोने वाला जीन है, इसलिए cry gene. No. तो any idea? नहीं पता होगा तो मैं बोलूंगी. See, this Bacillus thuringiensis is having one gene called as CRY, cry gene.
क्राई का मतलब है क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन प्रोटीन, इट प्रोड्यूसेस क्रिस्टलाइन प्रोटीन, और वो प्रोटीन का नाम है थुरियोसाइड. Bacillus thuringiensis is having one gene called as cry gene. Cry का मतलब क्रिस्टलाइन प्रोटीन, और वो क्रिस्टलाइन प्रोटीन है, उसका नाम है थुरियोसाइड. थुरियोसाइड आप आराम से स्पेलिंग लिख सकते हो थुरिंजेंसिस से, थुरियोसाइड. And this thurioside, what it will do, it will attack the, or it will kill the insects. कॉटन प्लांट पे जो इंसेक्ट्स आते हैं ना, उनको बोलते हैं बॉल वर्म. तो वो बॉल वर्म को वो डिस्ट्रॉय करेगा. एंड दैट इज व्हाई with the help of recombinant DNA technology, this cry gene is introduced into the plant, cotton plant and tobacco plant. So BT cotton, BT tobacco, आपको पता है BT indicates Bacillus thuringiensis. Okay? Yes. It is given somewhere in the book. I don't know where it is given. Next, 64. DNA polymerase enzyme is isolated from which bacteria? DNA polymerase. B option. Thermus aquaticus. Thermus aquaticus बोल रहे हो? Yes. DNA polymerase is isolated from, according to me, it should be E. coli. Thermus aquaticus से तो हम लोग टैग polymerase obtain करते हैं ना? So it Yes. should be E. coli, huh? It should be E. coli. 65. The correct order of steps in PCR is D option. last, ना? Denaturation and Last one. extension. हाँ, Yes. correct, 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 correct. चलो अभी आगे का 5 करो. 66 से लेके 70 तक. हेलो मैम. हाँ हो गया. मैम वो डीएनए पॉलीमरेज आइसोलेटेड फ्रॉम विच बैक्टीरिया? DNA polymerase which obtained from which E. coli. ओके, वो आंसर की में थर्मस नहीं वो एक्वाटिकस दिया. आंसर की में ना कभी कभी रॉन्ग होता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, कभी कभी रॉन्ग. सिक्सटी सिक्स से लेके 70 तक.
Done, ma'am. 1 minute, huh? I'm searching for one thing which I want to tell you. If it is given here in the notes, well and good. Otherwise, everyone has finished. Shall we start? Yes. Yes. हमारा 61, 67 चालू है, 66. During PCR technique, the pairing of timers for SSD DNA segment is called Annealing. Annealing. polymerization. Correct. It is called polymerization. Now 67. का आंसर क्या होगा? आपको मैं एक चीज बोलती हूँ कि उससे आपको तुरंत ये समझ में आएगा. आपने वो चैप्टर किया है, क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, डीएनए वाला, डीएनए, लैक ऑपेरॉन, प्रोटीन सिंथेसिस, ये किया है चैप्टर? No. Yes. हाँ, नहीं हुआ है No. आपका ये चैप्टर? नहीं हुआ है? हाँ, No. फिर तो नहीं आएगा आपको. लेकिन देखो, उसके लिए मैं एक चीज याद आपको बोल देती हूँ, नहीं तो चाहिए तो लिख के भी ले लो, लिख के ले लो, दैट इज बेटर. मैं बोर्ड पे लिखूं क्या या ओरली बोलूं? आप जैसे बोले वैसे. चाहिए तो बोर्ड है मेरे पीछे, मैं लिखती हूँ. हाँ, बोर्ड पे. बोर्ड पे लिखती हूँ क्योंकि आपको वर्ड्स पता नहीं होंगे ना, तो आपको बोर्ड दिखाई देता है ना? Yes. 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 तो मैं वो तीन सेंटेंसेस मुझे आपको बोलना है, और वो आपको समझ में आएगा तो इसका आंसर आप दे सकते हैं. 1 minute, आई विल राइट ऑन द बोर्ड.
Can you see the board? Can you see the board? Yes. ma'am. I will take the pen here. If you want, I will sketch a diagram for DNA. इससे एक्सप्लेन करती हूँ मैं. पहले लिख के ले लो, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ. ये आप सीखोगे वो चैप्टर में तो भी. हो गया कि बोल देना. हाँ, Done, ma'am. सबने लिख के लिया, सबका हो गया. Yes, ma'am. करूँ एक्सप्लेन? Yes. ये जो Yes, ma'am. डीएनए का डायग्राम है ना, डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड, यानी 2 स्टैंड है. और हर एक स्टैंड, अभी ये एक के ऊपर एक कॉइल है, ये तो आपको पता है. That the 2 strands of the DNA are coiled around each other and around one imaginary axis. और उसको पोलैरिटी है. पोलैरिटी है यानी इसका मतलब क्या? ये 2 स्टैंड में सीधा कर दूं तो ऐसे दिखाई देंगे आपको. समझो ये स्टैंड पे यहाँ पे थर्ड कार्बन एटम इज फ्री. इसको बोलते हैं 3 डैश. 3 डैश यानी थर्ड कार्बन एटम इज फ्री. और उसके अपोजिट साइड में 5th कार्बन एटम इज फ्री. अभी ये 5th कार्बन एटम जहाँ पे फ्री है ना, वहां फॉस्फेट ग्रुप रहता है, फ्री फॉस्फेट ग्रुप. और ये थर्ड कार्बन एटम फ्री है ना, उसके यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहता है. और 3 डैश जो एंड है उसके सामने वाले स्टैंड पे हमेशा 5 डैश एंड होगा. और ये जो 5 डैश एंड है उसके सामने 3 डैश एंड होगा. इसका मतलब है these 2 strands are anti-parallel and complementary. The 2 strands of DNA are anti-parallel and complementary. Anti-parallel का मतलब यहाँ पे 3 डैश एंड है तो सामने पे 5 डैश एंड होगा. अभी ये भी मैंने पूरा एक्सप्लेन नहीं किया, ये आप पढ़ोगे वो चैप्टर में, क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, क्योंकि उसमें और एक्सप्लेन करना है, लेकिन वो आपके टीचर करेंगे. तो ये 3 डैश एंड है ना, उसके सामने हमेशा 5 डैश एंड ही होना चाहिए, ये याद रखो. और बाद में जब रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन मींस रिप्रोडक्शन. आपको रेप्लिकेशन वर्ड पता है, आपने सेल डिवीजन में किया है कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस. तो 3 डैश एंड के सामने पहले न्यू स्ट्रैंड तैयार होगा. So replication when it will take place, new strand will be produced in 5 dash 3 dash direction. जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है मैसेंजर आरएनए इज प्रोड्यूस फ्रॉम डीएनए.
तो वो टाइम आपको पता है 3 टाइप के आरएनए है, मैसेंजर आरएनए, रिबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। तो ये मैसेंजर आरएनए जब तैयार होता है प्रोटीन सिंथेसिस में, तो वो भी 5' 3' एंड में ही होता है। और जब ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन मीन्स द लैंग्वेज ऑफ नाइट्रोजन बेसिस इज कन्वर्टेड टू लैंग्वेज ऑफ अमाइनो एसिड्स, तो वो भी 5' 3' एंड में ही होता है। तो ये जो 3 क्वेश्चन है, मैंने ऊपर जो 3 सेंटेंसेस लिखे हैं, तो वो तीनों का आंसर एक ही है, 5' 3' एंड। अलग अलग ऑप्शन देंगे, ऑप्शन कैसे होंगे? ऑप्शन एक तो मेरा 5' 3' एंड है, समझो फर्स्ट ऑप्शन मैंने लिखा है 5' 3' एंड, सेकंड ऑप्शन मैंने लिखा 3' 5' एंड, थर्ड ऑप्शन 3' to 3', फोर्थ ऑप्शन 5' to 5', ऐसे 4 ऑप्शन रहते हैं। क्वेश्चन भले 3 में से कोई भी हो, ऐसे ऑप्शन आएंगे तो अपना आंसर ये है 5' to 3' एंड। तो अभी आपको पता है न्यू स्टैंड इज ऑलवेज प्रोड्यूस इन 5' 3' एंड, तो ये इसका हेल्प लेके आप उसमें क्या आंसर दोगे अपने क्वेश्चन में? न्यू स्टैंड ऑफ डीएनए इज ऑलवेज प्रोड्यूस इन 5' 3' एंड, ये आपको पता है। तो ये पकड़ के ये सेंटेंस याद रख के आप ये इसका आंसर क्या दोगे 67 का? बी क्या हो ऑप्शन, सकता है? बी हाँ, ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि सेकंड ऑप्शन में देखो दोनों स्टैंड के ऊपर 5' 3' एंड से ही लिखा है, तो बी इज आवर आंसर। रिमेम्बर दिस वन, वेरी सिंपल। लेकिन ये याद रखे ना, ये जो सेंटेंसेस वो याद रखे तो आपको आ जाएगा आंसर। 68 stir tank fermenter have been designed for, अभी मैंने बोला था ये स्टर टैंक फर्मेंटर क्यों स्टरर है? स्टरर से पूरा टाइम वो न्यूट्रिएंट मीडियम और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिक्स होते हैं और ऑक्सीजन भी अवेलेबल रहता है सब जगह। तो डी ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन 68 का लास्ट ऑप्शन, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। 69, अभी फिर से आपको बायोरिएक्टर पता होना चाहिए, तो ये आप तो भी मैंने थोड़ा थोड़ा तो एक्सप्लेन किया है आपको। ए ऑप्शन, हाँ ए ऑप्शन। करेक्ट। इन बायोरिएक्टर जो स्टर टैंक फर्मेंटर हम लोगों ने देखा, उसमें पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर पीएच हम मेंटेन करते हैं, और बाद में उसमें न्यूट्रिएंट मीडियम यानी सबस्ट्रेट डालते हैं, विटामिन डालते हैं, ऑक्सीजन अवेलेबल कर देते हैं। और ये क्यों करते हैं? सो दैट organisms will grow there, microorganisms will grow there, and whatever product we want we will get it. For example, when we want to produce penicillin, then in that penicillium chrysogenum, ये तो penicillium not atom, कुछ तो लिखेंगे, वो pure strain of that we add into bioreactor, and some carbon source is added, maybe anything, any carbohydrate will be added, and then particular pH is maintained, particular temperature is maintained, and the stirrer is stirring all the time, so oxygen is made available. तो fermentation process हो जाएगी, penicillin form हो जाएगा, then we remove everything from the bioreactor और separation करते हैं, purification करते हैं, downstream process होती है। so इसका आंसर है A, 69 का आंसर होगा A। now 69 के बाद 70, which vector can clone a small fragment of DNA? प्लाज्मिड। Plasmid. और आपको पता है when we want to introduce bigger DNA, not a small fragment, bigger DNA, then which vector we use? किया है हम लोगों ने ये bacteriophage. Have you studied bacteriophage or no? Yes, ma'am. So when we want to introduce a bigger DNA into the host, we use bacteriophage. Bacteriophage means bacterial virus. किया है ना आपने ये या नहीं किया है? Yes, ma'am. Correct. किया है ना? And in that way, that means most commonly used vector is
समझो मैंने क्वेश्चन पूछा मोस्ट कॉमनली यूज वेक्टर इज, और मैंने प्लाज्मिड, प्लाज्मिड, करेक्ट करेक्ट। और बैक्टीरियोफेज में मोस्ट कॉमनली यूज बैक्टीरियोफेज एज वेक्टर, तो उसका आंसर है लैम्बडा एंड M13। M13 एंड लैम्बडा, ये दिया है अपने बुक में या नहीं दिया है? बुक में, हाँ मैं टेक्स्ट बुक में पूछ रही हूँ। Yes, ma'am. लैम्बडा Yes, Lambda ma'am. and M13 fake. दिया है ना? Bacteriophages. Yeah. दिया है ना, लैम्बडा एंड M13 आर मोस्ट कॉमनली यूज बैक्टीरियोफेज एज वेक्टर। तो जब क्वेश्चन आएगा तो आप ध्यान से पढ़ो क्या पूछा है। कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेक्टर इज, तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेक्टर ऐसे पूछा है तो प्लाज्मिड, लेकिन मोस्ट कॉमनली यूज बैक्टीरियोफेज एज वेक्टर ऐसे आया तो M13 एंड लैम्बडा। तो आपको क्वेश्चन ठीक ढंग से पढ़ना है, नहीं तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। सिर्फ प्लाज्मिड, सिर्फ वेक्टर पूछा होगा तो प्लाज्मिड, और बैक्टीरियोफेज एज वेक्टर पूछा होगा तो लैम्बडा एंड M13। समझ गए ना? आपको पढ़ना चाहिए बराबर ढंग से। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है कि उसमें बच्चे हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो मैंने डिस्कस किया है। फंक्शन ऑफ माइक्रोपाइल इन ओव्यूल इज, क्या है फंक्शन माइक्रोपाइल का? फंक्शन ऑफ माइक्रोपाइल इन द ओव्यूल इज फॉर एंट्री ऑफ वाटर, Guards the pollen tube. हाँ फॉर एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। और सीड में पूछा होगा तो फंक्शन ऑफ माइक्रोपाइल इन सीड इज एंट्री ऑफ वाटर, Entry of water. Water and oxygen. Oxygen. यानी आपको सिर्फ ओव्यूल और सीड ये दो वर्ड अलग है, बाकी सब क्वेश्चन सेम है। वैसे ही इसमें ये जो मैंने क्वेश्चन बोला, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेक्टर, ऐसे पूछा होगा तो प्लाज्मिड। And out of the following, which is most commonly used bacteriophage as vector, bacteriophage word add कर दिया तो lambda M13 ये आंसर आ जाएगा। तो आप क्वेश्चन आराम से पढ़ो when you will go for test। ये जब नीट नहीं तो सीईटी की एग्जाम होगी तो बिल्कुल एक्साइटेड होना नहीं है, नहीं तो डिप्रेस भी नहीं होना चाहिए। पेपर इजी आ गया तो भी मन को शांत रखना है, और बहुत डिफिकल्ट आया तो भी डिप्रेशन नहीं होना चाहिए। शांत मन से ठीक ढंग से पढ़ के आप आंसर दे दो। तो यानी कि व्हेन यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर, आपका ध्यान सिर्फ क्वेश्चन पे रहना चाहिए और कहीं भी नहीं, इधर उधर खुदर भी नहीं, सिर्फ क्वेश्चन। ठीक है? तो अभी 71 से 75 करो। कितने हैं? 78 है ना? हाँ 78 है, कर दो। 71 to 75 तो कर दो, नहीं तो 78 तक भी कर दिए तो अपना वो खत्म ही होगा वो पार्ट। कर दो।
Yes, have you finished? Yes, ma'am. Yes, come. 78 तक कर दिए या 75? 78 तक कर दिए या 75 तक? 78. वेरी गुड, चलो 71, एक मिनट है, मैंने उल्टा कर दिया। हाँ, 71 आपको मैच करना है, लीस्ट 1, लीस्ट 2 एंड लीस्ट 3, करेक्ट मैच। तो इसका आंसर आपने क्या किया? C option. अभी देखो वैसे ही ढंग से करना है, वैसे ही ढंग से, यानी जो मैंने बोला था ना कि पहले जो अपने को आता है वो ही देखने का, और बाद में उसके बाद में जो नहीं आता है वो अपने आप आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल चलो मुझे पीसीआर का पता है, पीसीआर में मुझे क्या अभी देखना है? एम्प्लीफिकेशन ऑफ Amplification of DNA. तो ए का 3 होगा सेकंड ऑप्शन में, और बाद में क्या होगा? वो एम्प्लीकेशन ऑफ डीएनए टैग पॉलीमरेज, Polymerase. क्योंकि वो यूज करते हैं। तो मुझे पता चला कि ए का आंसर 3 and 1 होना चाहिए, तो वो मैंने यहाँ पे देखा, तो वो ए ऑप्शन में है, सी में भी है और डी में भी है, तो मेरा बी आंसर नहीं है, ये मुझे पता चला। अभी मैं दूसरा देखूंगी, डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। डाउनस्ट्रीम प्रोसेस मीन्स क्या? प्रोडक्ट Product सेपरेशन एंड separation. प्यूरिफिकेशन, ओके, ये होगा, है कि नहीं? तो वो मैं देखूंगी। तो बी का 5 किस में आ गया? बी का 5 वो इसमें आ गया है ना, ए में और सी में, तो अभी मेरा आंसर ए और सी में ही होगा, ये मुझे पता चला। उसके बाद मैं आगे का देखूंगी क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है इसमें से? यस, क्या है इसमें से? Specific base sequence. स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस, तो वो मुझे पता चला। और बाद में ये थर्ड ये है ना लिस्ट, उसमें से उसका आंसर क्या होगा? E. coli. हाँ, इक्वल है, तो वो पता चला मुझे, तो वो मैं यहाँ पे है वो देखूंगी, तो वो सी में है, तो अभी मेरा आंसर सी आ गया। ऐसे एक एक देखते जाने का कि पहले ये, फिर ये ऑप्शन नहीं है, ये रॉन्ग, फिर ये, फिर इसमें से ये निकल गया, ऐसे करते करते हम लोग एंड तक आ जाते हैं, करेक्ट? वैसे देखना है। चलो नाउ 72, what is the criteria for DNA fragment movement on agar gel during gel electrophoresis? The smaller the fragment size, the farther it moves. Correct. Smaller fragments will move first. 73, the process of separation and purification of essential express protein before marketing is called Downstream processing. वेरी गुड। डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम प्रोसेस इसका मतलब फर्मेंटेशन के पहले जो जो करते हैं वो अपस्ट्रीम, फर्मेंटेशन के बाद जो करते हैं वो डाउनस्ट्रीम प्रोसेस, मार्केटिंग के पहले। नाउ डीएनए फ्रैगमेंट्स आर Negatively charged. DNA is negatively charged. Now 75, a gene whose expression helps to identify transformed cell is known as? Selectable marker. Yes, correct. Selectable marker. The 76, the DNA fragment separated on agar gel can be visualized after staining with Ethidium bromide. ethidium bromide. बरोबर. From which bacterium RENSAL1 is isolated? समझो आपको ये पता नहीं होगा तो भी आप इसका आंसर दे सकते हो, क्योंकि आपने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को नेम कैसे देता है देखा है। हिंट 3 में एच क्या है? कैसे सॉल्व करना है वो मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैं अलग चीज पूछ रही। हिंट 3 HRND3, उसमें एच क्या है? ये आपने किया है ना, हाउ द नेम्स आर गिवन। हाँ, किया है या नहीं? Genus. हाँ, एच इज जीनस, हीमोफिलस। देन एन क्या है? स्पीसी। तो हीमोफिलस क्या है नाम वो? इन्फ्लुएंजा।
करेक्ट करेक्ट, और बाद में है स्ट्रेन। तो फर्स्ट alphabet is standing for abbreviation of genus. Second and third alphabets are there for species. Fourth one होगा वो strain के लिए होगा। अभी देखो SAL1 ऐसे है, SAL1, तो अभी ये किससे निकाला होगा? हम लोगों ने क्या क्या किया? हिंट 3, और दूसरा कौन सा किया है हम लोगों ने? इकोराई 1। इकोलाई वाला किया है, बरोबर बरोबर। तो ये जो है ना, SAL1 is obtained from Streptomyces albus। पता चला? S is for what? S is for genus Streptomyces। AL is for albus, क्योंकि ये B वाला जो है वो Streptococcus aureus है, तो उससे निकाला होगा तो AU आएगा ना। तो वो AU नहीं है, AL है। तो AL किस में है? फोर्थ में है, इसलिए वो मीन्स अभी ऐसे वाला क्वेश्चन कुछ आ गया और आपको नहीं आता है तो आप स्पेलिंग देखते जाओ। फर्स्ट अल्फाबेट इज फॉर जीनस, तो एस है ना, तो एस मेरे हिसाब से बी नहीं तो डी आंसर आएगा। लेकिन बाद में AL इज फॉर स्पीसीज, तो AL किस में है? फोर्थ में है ना, अल्बस। तो मेरे आंसर हो गया फोर्थ। समझ गए कैसे? आपको नहीं आता है तो कैसे सॉल्व करना है? यस सबको समझ में आ गया मैं क्या बोल रही हूँ? यस। अरे एक ही पर्सन यस यस बोल रहे हैं, बाकी किसको समझा है कि नहीं? ओके 78, साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA ट्रांसलेशन कुड बी अचीव्ड थ्रू। ये आपने किया नहीं है क्योंकि आपने ट्रांसलेशन ही किया नहीं, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, तो ये आपको शायद नहीं आएगा। वो आप जब चैप्टर नंबर 3 करोगे ना तो पता चलेगा। लेकिन इसका आंसर अभी मॉड्यूल में आया होगा। इसका आंसर है बोथ A एंड B। ये तो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगी, वो आपको समझेगा जब आप वो चैप्टर करोगे तब। अभी मुझे बोलो, प्रैक्टिस प्रॉब्लम आप करोगे ना? प्रैक्टिस प्रॉब्लम, yes, this is homework. I think nobody will फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करके नहीं लेते हैं ना, दैट इज होमवर्क ना। यस अरे बोलो आप। प्रैक्टिस प्रॉब्लम टीचर सॉल्व करके लेते हैं या आप घर में करते हो? नोबडी इज रेडी टू गिव आंसर। यस हो गया सब लोग? Yes. Okay. At present, I will tell you practice problem. These questions are for homework. You will solve them at home. And if any doubt is there, you can ask me in the next lecture. Now we will start with another chapter, biotechnology only, biotechnology and its application. उसके notes आपको मिले हैं? यस मुझे भी निकालना है। मैं ये बंद करती हूँ और वो लैपटॉप पे वो दूसरा वाला निकालती हूँ। तो वो चैप्टर आप निकालो और उसमें से 5 क्वेश्चन पहले कर दो। मुझे भी टाइम लगेगा क्योंकि ये निकाल के मुझे ईमेल देख के डाउनलोड करके लेना है। सो आई विल डू दैट। ओके, सो नाउ वो चैप्टर करना स्टार्ट करो। Biotechnology and its application.
यस 1 मिनट। देखो यही क्वेश्चन है ना पहला, सुनो, आइडेंटिफाई द एरिया नॉट इन्वॉल्व इन बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च, यही है ना क्वेश्चन पहला वाला। Yes, ma'am. Correct. हाँ, फिर ठीक है, क्योंकि मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ हो गया, तो करेक्ट है। तो पहले 5 क्वेश्चन नहीं तो 10 क्वेश्चन करो, फिर हम लोग स्टार्ट करते। प्रैक्टिस प्रॉब्लम आप लोग घर में सॉल्व करो, नेक्स्ट टाइम चाहिए तो इसका आंसर हम लोग फटाफट देख लेंगे, कुछ रॉन्ग होगा और आपको नहीं आया तो, लेकिन घर में पढ़ाई करना है। हाँ? ऐसे नहीं कि जो टीचर ने किया बस उतना ही काफी है, ऐसे नहीं है, आपको घर में करना ही पड़ता है। तो अभी इसमें से फर्स्ट 10 क्वेश्चंस करो, फर्स्ट 10 हो गए, हो जाएगा। हो गए तो बोल देना। हाँ, हो गए 5 या 10 हो गए। Yes, ma'am. सबके हो गए। यस, ओनली 1 स्टूडेंट इज गिविंग मी आंसर, बाकी लोगों का क्या है? Yes, ma'am. अक्षय, अवंतिका, आर्यन, 2 आर्यन है ना? क्या आप लोग कर रहे हो ना? देखो आपको नहीं देखो ये ऑनलाइन है ना, इसलिए मुझे समझता नहीं, आपके चेहरे नहीं दिखाई देते मुझे। क्लासरूम में होगे तो मैं देख सकती हूँ सबको, तो मुझे पता चलता है कि किसको समझा है किसको नहीं समझा है। यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन आप कर रहे हो ना। क्या करें, अभी ये कोरोना के कारण हम लोग नहीं आ सकते हैं और ऑनलाइन चालू है, तो यही ढंग से करना पड़ेगा आप लोगों को, क्या करें। तो खुद का खुद से मन से काम करो, क्योंकि देखो नीट के एग्जाम के लिए बहुत पढ़ाई करना पड़ता है। मीन्स कितना टाइम पढ़ाई किया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कितना कंसंट्रेशन के से किया है पढ़ाई वो इम्पोर्टेंट है। भले थोड़ा ही टाइम काम करो यानी पढ़ाई करो, लेकिन वो एकदम कंसंट्रेशन से करो, तो वो ध्यान में रहेगा। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एरिया नॉट इन्वॉल्व इन बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च। क्या होगा? फर्स्ट का आंसर क्या होगा? To create human clones. करेक्ट, ह्यूमन क्लोन्स बनाते हैं क्या? नहीं बनाते, बैन इज देयर ऑन ह्यूमन क्लोन्स। नहीं तो क्या होगा? ये टेररिस्ट अपना क्लोन बनाएंगे और फिर क्या होगा आपको पता है?
but there is ban on formation of human clones. मैमल के लिए नहीं करते. आपको पता है कौन सा शिप का क्लोनिंग किया था? क्लोनिंग नहीं किया था एक्चुअली वो, लेकिन आपको पता है डॉली शिप. Dolly ship. हाँ, शिप का नाम था डॉली. Okay, in which field application of biotechnology occurs? All of the above. Yes, all the above. You have studied scope of biotechnology. तो ये सब fields में, medicine में, agriculture में, environment में, सब में biotechnology has played important role. Now, third one, in which of the following form the improved catalyst is produced using biotechnology? Catalyst आपको पता है? Catalyst यानी आपको पता है catalyst मैं क्या explain करूं? In which of the following form the improved catalyst is produced during biotechnology? It is produced in the form of microbes or pure enzymes. Microbes are used, isn't it? So microbes are used here. Microbe or pure enzyme. Next one, which of the following strategies cannot be considered for increasing food production? Maximum use of chemical fertilizers. We don't use chemical fertilizers. They are bad. That means they will destroy, they will destroy the microorganisms which are present in the soil. They are responsible for causing pollution also. Not only that, they are costly also. So we don't want to use chemical fertilizers. So that is our answer. Green Revolution succeeded in. Green Revolution पता है ना आपको? नहीं. हाँ? C option. Yes, correct. Green Revolution आपने पढ़ा नहीं है because enhancement in food production उसमें ये Green Revolution है. Green Revolution इसका मतलब क्या है? Green Revolution means we have to increase the production. We have to increase the production and answer is tripling the food supply. Tripling the food supply. Green Revolution में हम लोगों को yield बढ़ाना है. Not only that, whichever area, in whichever land, cultivation is not done, we have to bring it under cultivation. And we have to produce or we have to do the research and produce new varieties of plants which we can introduce in the particular area so that they will be able to adjust there, they will be disease resistance. So that is called as Green Revolution. See, around 1962 or 65, iske beech mein, there was too much shortage of food material in Asiatic countries. Asiatic country means in the continent of Asia, whatever countries are there, including our India, there was too much shortage of food material. We were not getting rice, wheat, jawar in open market. We were getting it only on ration shops. Now ration shops are not there only, or they are there only for few people. We can buy or we can purchase anything, whatever we want from shops, open shops, grocery shop. लेकिन वो टाइम ऐसे नहीं था. बाद में who is father of Green Revolution? Do you know who is father of Green Revolution? M.S. Swaminathan. M.S. Swaminathan is in India. Very good. You know the name of M.S. Swaminathan. M.S. Swaminathan is father of Green Revolution in India. लेकिन Norman Borlaug, he is called as father of Green Revolution all over the countries, international level पे. तो उन्होंने semi-dwarf variety of wheat and rice was introduced in India in the beginning, and then production increased, and production increased so much that now we are exporting the wheat and rice. That means that it's called as Green Revolution. Green Revolution में क्या होता है? We have to use the area of which is not under cultivation. Means we have to increase the agricultural land. Second one is we have to introduce new varieties of cereals and plants. And we have to use minimum use of chemical fertilizers. Organic farming करना चाहिए.
These three things are and even to take double or triple crops. नहीं तो एक सॉइल में एक फील्ड में एक ही क्रॉप लेते हैं एक साल में, ऐसे नहीं होना चाहिए, 2-3 क्रॉप्स लेना चाहिए. इसको हम लोग बोलते हैं मेकिंग मैक्सिमम यूज ऑफ अवेलेबल लैंड. So taking more crops per year, that is called as green revolution. So green revolution, remember, father of green revolution in India is MS Swaminathan. And MS Swaminathan का नाम नहीं दिया होगा और इंडिया में नहीं पूछा होगा तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग. ये आपको सब कुछ शायद मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं, क्योंकि मैं ना बहुत सारी चीज बोल देती हूँ कि जो बुक में भी नहीं है. तो ये शायद है अपने बुक में, टेक्स्ट बुक में, अंडर द चैप्टर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन. तो आप देखो है कि नहीं. हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 किया है क्या? आज 5 तक करेंगे और वेट करेंगे. अभी हो गया है ऑलमोस्ट, टाइम इज ओवर. तो 5 करे तो ध्यान में रहता है ना, अप टू क्वेश्चन नंबर 5. तो अभी होमवर्क में आप वो प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, पहले वाला चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस. Yes. करो, वो सॉल्व करो. और उसमें से जो आपको नहीं आता है, ऑफ कोर्स आपको आएगा, वो आप ढूंढ लो. मॉड्यूल में देखो, मॉड्यूल ने जो आपको नोट्स भेजे उसमें देखो, सीबीएसई के बुक में देखो, अपने टेक्स्ट बुक में देखो, और जो नहीं आता है वो बाद में मुझे पूछो. तो हम लोग आज यहीं पे we will wait and we are done 5 questions. So next time we will solve this biotechnology and its application. इसके ऊपर क्या आपको टेस्ट है क्या अभी, या हो गई? आज है मैम. आज है? अरे बाप रे. ठीक है, तो आपने कुछ तो पढ़ा होगा ना, चैप्टर तो ये- पढ़ा होगा. सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी पे है आज? बायोटेक्नोलॉजी जूलॉजी का भी चैप्टर है. अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है. तो ऑल द बेस्ट. और ये चैप्टर हम लोग नेक्स्ट टाइम कंप्लीट करेंगे. ओके, Yes. यस, वेरी गुड.